Hello learners, this is your trainer and guide Aishwarya Seth welcoming you all to this India's first social and revolutionary educational platform of Learn to Lead tutorials UGC Online Mantra. Here we are providing you complete coachings of various competitive exams like UGC NET, CTET, PTET, NTT, ETT, KVS, NVS, B.Ed, M.Ed, etc. 100% free of cost throughout India, especially to those students who can't afford these exclusive courses during this lockdown crisis. So guys, you don't need to purchase any study material or notes. You don't need to go for any kind of offline or online classes. All you need is to subscribe this channel and take complete and full-fledged coachings of these competitive exams absolutely free of cost. So in UGC preparational series, the 10th unit of UGC paper 1, that is higher education, is going currently on this channel, where 90% of the syllabus of higher education has been totally completed and 10% is left. So this week I taught you skill based education along with polity based subtopics like drafting and structure of Constitution of India, preamble and its various domains, a little bit about national courts and parliament system. So from these topics which we have covered this week, I will discuss today the previous year questions from these topics. So on the screen, first question you are seeing, which part of Constitution ऑफ इंडिया इज नोन एज कोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स. ठीक है जी. सो वन बाय वन हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इस वीक में हमने टॉपिक्स कवर किए हैं. मैं आपको दोबारा बता देती हूँ. स्किल बेस्ड एजुकेशन कवर किया है. ठीक है जी. आधा हमने पिछले सप्ताह या पिछले वीक कवर किया था स्किल बेस्ड एजुकेशन का, और आधा हमने इस वीक कवर किया है स्किल बेस्ड एजुकेशन का. ठीक है जी. और प्लस कुछ पॉलिटी का मैंने आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्री एम्बल, पार्लियामेंट्री सिस्टम, कोर्ट्स, ये सब कुछ करवाया था. तो उसके ऊपर बेस्ड जो है क्वेश्चंस जो है आज हम डिस्कस करेंगे. और यही चैनल का ट्रेंड है कि हर वीक जितने भी टॉपिक्स हों उस वीकेंड पे उसी टॉपिक्स के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है हम आपके साथ डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकली, ताकि आपको पता लगे कौन कौन से क्वेश्चंस जो है किस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और कैसे आपको आए हुए हैं. सो विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नोन एज कोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स? इट्स पार्ट 4. फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है. इसका आंसर क्या है? पार्ट 4 is dealing with the Constitution of India, that is the Code of Administrators, right? Part 4 में Code of Administration जो है वो mentioned है, तो इसका आंसर है Part 4. Next चलते हैं. Parliament can legislate on matters listed in the state list, right? So Parliament can legislate on the matters listed in the state list. So इसमें कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं? With the prior permission of the President, only after the Constitution is amended suitably in case of inconsistency among the state legislatures, and the or D part is at the request of 2 or more states. So D option is right. At the request of 2 or more states, the parliament can legislate on the matters listed in the state list. ठीक है जी. कोई भी ऐसा मैटर, कोई भी ऐसा इशू जो है जनरेट हो जाता है तो उसके ऊपर जो है लेजिस्लेट मतलब रूल्स रेगुलेशंस बनाने की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्लियामेंट की है. पार्लियामेंट हमेशा जो है एक्ट पास करती है या सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस बनाती है. तो कोई भी ऐसा मैटर हो जो स्टेट लिस्ट में हो और उसको चैलेंज किया जाए तो वो किसकी रिक्वेस्ट पे जो है उसको लेजिस्लेट करती है उन मैटर्स के ऊपर, एट द रिक्वेस्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट्स. ठीक है जी. सिंगल स्टेट से नहीं बट 2 और मोर स्टेट्स की अगर रिक्वेस्ट आए तो पार्लियामेंट डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं इस मुद्दे पे. नेक्स्ट चलते हैं. इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर सेटल्ड बाय. अब ऐसे कोई डिस्प्यूट्स जो है वो इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स, बेसिकली कोई ऐसे सिंपल डिस्प्यूट्स नहीं, लेकिन जो इलेक्टोरल मतलब इलेक्शन बेस्ड जो डिस्प्यूट्स हैं वो अगर अराइज हो जाएं, ठीक है जी, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, तो वो कौन सेटल करता है? इसका राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, विच इज़ द अल्टीमेट कोर्ट. इससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं है. सुप्रीम कोर्ट इज़ द हेड ऑफ ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया. सो अल्टीमेट अथॉरिटी जो है लीगल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट है. इसका फैसला जो है वो फाइनल अंत में माना जाता है. ठीक है जी. तो अगर कोई इस तरह से इलेक्शन के रिगार्डिंग जो है डिस्प्यूट्स अराइज हो जाए so it's the responsibility of the Supreme Court to take the final action and final judgment, right? So C is the right answer. Next चलते हैं. Which of the following articles of the Constitution of India safeguards the rights of minorities to establish and run educational institutes of their own liking? So ये जो क्वेश्चन है बेसिकली फंडामेंटल राइट्स में से आया हुआ है. अभी हमने फंडामेंटल राइट्स जो है
इस चैनल पे डिस्कस या कवर नहीं किए हैं, लेकिन ये जनरल क्वेश्चन है इसलिए मैंने आज की प्रेजेंटेशन में ले लिया। लेकिन नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स डिटेल में कौन कौन सा जो है आर्टिकल कहाँ का लगता है, ठीक है जी, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। सो ये एक जनरल क्वेश्चन था तो मैंने ले लिया कि कौन से ऐसा आर्टिकल है जिसमें माइनॉरिटीज़ का जो इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड किया जाता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें आर्टिकल 30 है, दैट इज सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अंडर द आर्टिकल 30 itself, the Constitution of India safeguards the rights of minorities to establish and run educational institutions of their own likings। ठीक है जी, कि minorities जो है या minority groups जो हैं वो अपने institutions को build-up कर सकते हैं, उनको कंडक्ट कर सकते हैं और establish कर सकते हैं, ठीक है जी, उनके ऊपर कोई भी restriction नहीं है। तो ये आर्टिकल 30 बोलता है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कल लेके आऊँगी, ठीक है जी, तो वो भी वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 120 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द बिजनेस इन पार्लियामेंट शेल बी ट्रांजैक्टेड इन, ठीक है जी। सो आर्टिकल 120 है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्लियामेंट के अंदर जो भी कंडक्शन या डीलिंग्स होती हैं इस आर्टिकल के अंडर चलती हैं। और अगर इस आर्टिकल के अंडर ये डीलिंग्स चलती हैं तो ये जो डीलिंग्स हैं ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस में जो है लिख करके जो है शेयर की जाती हैं, पास की जाती हैं इधर उधर, ठीक है जी। तो ये क्या है, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। सो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अंडर द आर्टिकल 120 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द बिजनेस इन पार्लियामेंट शेल बी ट्रांजैक्टेड, ठीक है जी। ना ही इंग्लिश ओनली ना ही हिंदी ओनली, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी बोथ जो है पार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस मानी जाती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। द पार्लियामेंट इन इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 99.9% सबको पता होता है, लेकिन फिर भी एक जनरल क्वेश्चन है, ये बार बार आया हुआ है पॉलिटी में, तो इसलिए मैंने जो इसको लिया है अपनी प्रेजेंटेशन में कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। अब लोकसभा डिटेल में करेंगे, राज्यसभा डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है जी। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट कंप्राइजेस दीज थ्री होल इंग्रेडिएंट्स, होली कंप्राइजेस दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। सॉरी, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स द रिपब्लिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। कि रिपब्लिक कैरेक्टर्स मतलब जो गणतंत्र जो है रिपब्लिक होता है, गणतंत्र कैरेक्टर जो है इंडियन डेमोक्रेसी का, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं वो दर्शाती हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट दर्शा रही है। एक सिंगल ऐसी स्टेटमेंट है जो ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि रिपब्लिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी किस तरह से जो है वो हो सकता है। डी ऑप्शन देखिए, इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड पार्लियामेंट। मतलब जो अगर रिपब्लिक कैरेक्टर की बात करें हमारे इंडियन डेमोक्रेसी का, ठीक है जी, तो वो बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल होता है। मतलब जनता के ही द्वारा और जनता के ही लिए जो है हम इलेक्शंस जो हैं या अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुनते हैं। चाहे वो इनडायरेक्टली हम प्रेसिडेंट चुने, चाहे वो डायरेक्टली हम हमारा कोई जो है वो लीडर चुने, या फिर कह सकते हैं कि डायरेक्टली जो हम इलेक्शन से अपना स्टेट वाइज जो है वो सीएम चुने। लेकिन ये जो सब चीज़ें हैं ये किस में, मतलब कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो रिपब्लिक कैरेक्टर जो है वो शो कर रही है। दैट इज़ दी डी ऑप्शन, इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड पार्लियामेंट। कि जनता के ही मतलब बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। तो ये यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इसको प्रॉपर दर्शा रही है, रिपब्लिक कैरेक्टर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। नेक्स्ट चलते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, उसकी क्या स्टेटस है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। अब एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहा, ये पंजाब या हरियाणा या हिमाचल प्रदेश, एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहा। ये एक यहाँ पे स्टेट जो है वो पूरे इंडिया को या पूरे नेशन को स्टेट के रूप में हम कॉन्स्टिट्यूशन में लेते हैं। तो उसी के बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो हेड ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट यहाँ पे इंडिया, इंडिया को स्टेट जो है रिप्रेजेंट कहा गया है, इंडिया को स्टेट की तरह जो है वो इसमें मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द नेशन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है जी। एंड सो ऑन, इस तरह से उसको। और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रेसिडेंट जो है ये जब हम काउंटिंग करने पे आते हैं कि कितनी जनसंख्या है हमारे कंट्री की, तो हम उस वक्त सबसे पहले काउंटिंग में सबसे पहले फर्स्ट
सिटीजन किसको काउंट करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट को ही, प्रेसिडेंट से ही गिनती शुरू होती है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री जो है वो भी प्रेसिडेंट ही होता है, और प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द स्टेट होता है, मीन्स हेड ऑफ द इंडिया होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स ओथ, जो वो ओथ लेता है, ठीक है जी, शपथ लेता है, वो किस लिए लेता है, क्या उसका मेन मकसद क्या है? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ द कंट्री, कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना, प्रिजर्व करके रखना, उसकी कोई भी उल्लंघना ना करें, इस तरह से जो है वो ओथ लेता है। ठीक है जी, कि मैं उसको प्रेसिडेंट जो हमारे होते हैं वो ये ओथ लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी हम जो है वो उल्लंघना ना होने देंगे, ना किसी को करने देंगे, और क्या है, लॉ ऑफ द कंट्री, और जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, लॉ है, अल्टीमेटली उसको जो कंट्री से जो है वो प्रॉपरली मनवाएंगे, और कंट्री में उसका हर एक तरह का पालन होगा, रूल्स रेगुलेशंस का, लॉज का। तो इस तरह से वो जो ओथ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो डी है। द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट इज टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट चलते हैं, कंसिडर द स्टेटमेंट विच इज फॉलोड बाय द टू आर्ग्यूमेंट्स। अब ये इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है आर्ग्यूमेंट के बेस के ऊपर। ठीक है जी, एक स्टेटमेंट आपको दी हुई है और उसके दो आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं नीचे, और अब आपको ये बताना है कि अब दोनों में से फर्स्ट आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, या सिर्फ सेकंड आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, या कोई भी आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर दोनों के दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इक्वली स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो इसको देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ट्रिक देखें इसका कि कंसिडर स्टेटमेंट विच इज फॉलोड बाय द टू आर्ग्यूमेंट्स। स्टेटमेंट क्या है? शुड इंडिया स्विच ओवर टू अ टू पार्टी सिस्टम। शुड इंडिया स्विच ओवर टू अ टू पार्टी सिस्टम, मतलब इंडिया में दो पार्टीज ही होनी चाहिए। शुड का मतलब दो पार्टीज ही होनी चाहिए। ठीक है जी, आजकल तो कितनी पार्टीज हैं, बीजेपी है, फिर दूसरी कांग्रेस है, फिर आम है आम जनता पार्टी है, और बहुत सारी पार्टीज़ हैं। जब इलेक्शंस होती हैं तो बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं इलेक्शन में खड़ी होती हैं, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है। एक अब जो आर्ग्यूमेंट्स है वो स्टेटमेंट को ही देखकर उसको जो है हमने देखना है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आर्ग्यूमेंट्स को हम देखते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो स्टेटमेंट क्या कह रही है कि इंडिया जो है उसको दो पार्टी सिस्टम में जो है वो तब्दील हो जाना चाहिए। ठीक है जी, दो पार्टी सिस्टम कर देना चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट जिसमें क्या है, फर्स्ट क्या है, यस इट विल लीड टू स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। यस इट विल लीड टू स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ये आर्ग्यूमेंट आप देखिए, जो स्टेटमेंट है उसके जो है वो वीक जा रहा है या स्ट्रॉन्ग जा रहा है। अगर गवर्नमेंट दो होंगी, सिर्फ दो ही पार्टीज होंगी, तो उससे क्या होगा, स्टेबलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इम्प्रूव होगी। तो ये स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है यहाँ पे, बिल्कुल ये स्ट्रांगली जो है उसको एक ग्राउंड दे रहा है स्टेटमेंट को। हाँ, अगर दो ही पार्टीज़ हैं, तीसरी कोई पार्टी ही नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, हमारी गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट आ रही है उसकी स्टेबलाइजेशन जो है वो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लेवल पे होगी। तो ये आर्गूमेंट सही है। सेकंड क्या है, नो इट विल लिमिट द चॉइस ऑफ वोटर्स। अब अगर दो ही पार्टीज होंगी तो ये भी बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल स्ट्रांगली जो है ये भी जो स्टेट आर्ग्यूमेंट है सेकंड, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, जिसमें वो कहता है इस ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ दो पार्टीज होंगी तो क्या होगा, वोटर्स को वोट जो चॉइस है वोटर्स की वो लिमिटेड हो जाएगी दो पार्टीज़ को, या फिर ए को दें या फिर बी पार्टी को दें। तो ये भी स्ट्रांगली जो है उसको जो है वो रेकमेंड कर रहा है। तो मतलब आर्गूमेंट 1 एंड आर्गूमेंट 2 दोनों ही स्टेटमेंट को जो है वो एक मतलब सपोर्ट दे रहे हैं और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जा रहे हैं और स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स बन रहे हैं। तो ये दोनों ही हैं। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बोथ द आर्गूमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है जी, आपको समझ आ गया। अगर इसमें एक आर्गूमेंट स्ट्रांग होता, एक आर्गूमेंट वीक होता, तो हमारा आंसर कौन सा होना था? हाँ जी, कि जैसे ए ऑप्शन है, इसमें ए ऑप्शन है ओनली आर्गूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रांग। अगर सिर्फ एक आर्गूमेंट फर्स्ट स्ट्रांग होता तो ए ऑप्शन जाती। अगर ओनली आर्गूमेंट सेकेंड इज स्ट्रांग तो फिर क्या होता, वो बी ऑप्शन जाती, सेकंड वाला। ठीक है जी। अगर अब सी ऑप्शन क्या है, दोनों आर्गूमेंट्स ही स्ट्रांग है। मैंने आपको पहले बताया जस्टिफिकेशन दोनों आर्गूमेंट्स ही कर रहे हैं स्टेटमेंट को, तो दोनों ही स्ट्रांग है अपनी अपनी जगह। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन टू और मोर स्टेट्स फॉल अंडर इट्स विच ज्यूरिसडिक्शन, की कौन सी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर
जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है किसके अंडर? टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन टू और मोर स्टेट्स फॉल्स अंडर विच काइंड ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, दो स्टेट्स में अगर डिस्प्यूट हो जाए तो उसको सुलझाने वाली जो पावर है वो कौन सी जुरिस्डिक्शन के अंडर सुप्रीम कोर्ट के आ रही है? एडवाइजरी के अंडर, एपलेट के अंडर, ओरिजिनल के अंडर या रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर? ये सारे जुरिस्डिक्शन जो है ABCD सारी की सारी जुरिस्डिक्शंस जो हैं वो सारी सुप्रीम कोर्ट की ही हैं, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिक बोला कि कौन सी केस में, मतलब केस उन्होंने बता दिया कि जब दो स्टेट्स में डिस्प्यूट हों उनको सुलझाने की कौन सी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। इसमें से कौन सी है? सी ऑप्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया is to solve the disputes between two or more states। ओरिजिनल jurisdiction, jurisdiction का मतलब यहाँ पे क्या होता है? दायरा, किस दायरे में रहकर। तो इस तरह का मुद्दा सुलझाने के लिए कौन सी jurisdiction जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो है वो कारगर है या अप्लाई होती है? दैट इज़ द ओरिजिनल jurisdiction ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन फिगर्स इन द कौन से लिस्ट? हाँ जी, कॉन्करेंट लिस्ट। एजुकेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्करेंट लिस्ट में जो है वो मेंशन्ड है, और एज अ सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन ये किस में है? कॉन्करेंट लिस्ट में जो है वो दर्ज है। ठीक है जी, सो इसका आंसर जो है वो सी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, द ग्राउंड्स ऑन विच डिस्क्रिमिनेशन इन द एडमिशंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड आर। मतलब कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है ये कौन सी ऐसी ग्राउंड्स हैं? ABCD रिलीजन है, सेक्स है, बैलेंस प्लेस ऑफ बर्थ है, और D है नेशनैलिटी। ये चार तरह की ऑप्शंस दी हुई हैं, और इसमें आपको उन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है जिन ऑप्शंस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो प्रोहिबिट की गई है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कॉन्स्टिट्यूशनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में किस तरह की जो है डिस्क्रिमिनेशंस जो है एडमिशंस में प्रोहिबिट की गई हैं। ठीक है जी, अब देखिए इसका आंसर क्या है। सेकेंड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। सेकेंड आंसर ABC, मतलब A, B और C, मतलब रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ABC, इन तीनों ग्राउंड्स के ऊपर कोई भी पक्षपात नहीं हो सकता एडमिशंस में। किसमें? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की एडमिशंस में इन तो तीनों ग्राउंड्स के ऊपर पक्षपात जो नहीं हो सकता। किसी भी रिलीजन का पर्सन, किसी भी जेंडर का पर्सन और किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ का पर्सन, मतलब सबको इक्वल राइट्स हैं कि वो एडमिशन ले सकता है। लेकिन जो D ऑप्शन है नेशनैलिटी, उसका कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है, बिकॉज अगर इंडिया में नेशनैलिटी तो सारे इंडियंस ही होंगे, इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है जी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो नेशनैलिटी तो इंडिया ही होगा। इवन कि बाहर का भी कोई स्टूडेंट आता है तो उसको भी हम जो है इंडियन इंस्टीट्यूट्स में उसकी भी वेटेज अलग से होती है। लेकिन इन तीनों उन्होंने बोला प्रोहिबिट किन तीन ग्राउंड्स के ऊपर नहीं हो पा रहा, तो ये रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ है, जिनके ऊपर कोई भी जो है वो बंदिश नहीं है कि मतलब अगर कोई रिलीजन, जेंडर या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करेगा, ठीक है जी, एडमिशन क्राइटेरिया में एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, तो वो इलीगल होगा। ठीक है जी, सो दिस इज द आंसर। सेकंड इज ABC इज द सेकंड ऑप्शन, ABC इज द ग्राउंड्स which are prohibited totally to take the admissions in the educational institutes in the country, right? नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जितने भी क्वेश्चंस आपने अभी तक किए वो थे पार्लियामेंट के साथ में जुड़े हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में जुड़े हुए, ठीक है जी, कोर्ट्स के साथ में जुड़े, मतलब पूरी पॉलिटी के साथ जुड़े हुए। अब स्किल बेस्ड एजुकेशन का भी कुछ पार्ट हमने इस वीक में जो है कवर किया था। बेसिकली हमने उसकी पॉलिसीज़ और स्कीम्स, जो डिफरेंट स्कीम्स लेके आई है गवर्नमेंट, उसके ऊपर जो है प्रेजेंटेशन मैंने आपको दी थी, और उन्हीं स्कीम्स के ऊपर जो है अब जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, वो कुछ क्रक्स ऐसे क्वेश्चंस लेके आई हूँ स्किल बेस्ड एजुकेशन के, जो बार बार जो है अपीयर हुए हैं क्वेश्चन पेपर्स में। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी मैंने स्टार लगाया हुआ है। ये क्वेश्चंस कौन से हैं? स्किल बेस्ड एजुकेशन के, जो बार बार जो है वो UGC पेपर 1 में हायर एजुकेशन के अंडर जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन।
under whose leadership has the government of India launched the scheme Make in India. बेसिकली मेक इन इंडिया के ऊपर क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आता है, हर अटेम्प्ट में, चाहे वो जून का अटेम्प्ट हो चाहे वो दिसंबर का अटेम्प्ट हो। जब से ये स्किल बेस्ड एजुकेशन अपग्रेड हुई है, ठीक है जी, न्यू सब्जेक्ट जो है अपग्रेड हुआ है यूजीसी सिलेबस हायर एजुकेशन में, तब से मेक इन इंडिया का क्वेश्चन हर जो है या डिफरेंट स्कीम्स का क्वेश्चन हर क्वेश्चन पेपर में जो है वो आता है। तो तभी मैंने जो है इनको स्टार लगाया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पक्का आएंगे, ठीक है जी। और जिन्होंने स्किल बेस्ड एजुकेशन की, मैंने 3 वीडियोस लॉन्च करी थी टोटल, ठीक है जी, पिछले वीक में भी और इस वीक में भी। स्किल बेस्ड एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में टेक्निकल एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन सारी मैंने आपको डिटेल में कराई है। मतलब 90% हायर एजुकेशन का सिलेबस मैंने आपको करा दिया हुआ है। 10% जो रहता है वो कंटिन्यूड है, वो सिर्फ 10% में क्या रह गया, पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो सीरीज़ अभी चल रही है और उसको भी मैं 7 प्रेजेंटेशंस में कंप्लीट करूँगी, जिसकी 2 प्रेजेंटेशंस मैंने लॉन्च कर दी हुई हैं। 5 वीडियोज़ अभी भी पॉलिटीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की 5 वीडियोस अभी भी जो है वो स्टिल पेंडिंग है लॉन्च करने के लिए। और अगले वीक जो है ये 5 वीडियोस आएंगी, जिसके साथ ही पूरा का पूरा हायर एजुकेशन 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन स्किल बेस्ड एजुकेशन का। अंडर हुज लीडरशिप हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द स्कीम मेक इन इंडिया। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके अंडर जो है वो लॉन्च की गई थी, नरेंद्र मोदी साहब के, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर जी हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनकी लीडरशिप के अंडर जो है मेक इन इंडिया एस्टैब्लिश की गई थी, लॉन्च की गई थी। तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च मेक इन इंडिया। अब ये जो मेक इन इंडिया स्कीम है ये किस ईयर में लॉन्च हुई थी? हाँ जी, 2014 इसका राइट आंसर है। 2014 इज द ईयर in which the Make in India campaign और Make in India scheme was launched by Mr. नरेंद्र मोदी, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, which single window online portal has been integrated by the government of India for मेक इन इंडिया। फिर से देखिए, मेक इन इंडिया पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेक इन इंडिया की ऐसी कौन सी सिंगल विंडो ऑनलाइन पोर्टल है जो कि इंटीग्रेट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मेक इन इंडिया को जो है आगे कंडक्ट करने के लिए? ऐसा कौन सा पोर्टल है ऑनलाइन जो है वो मेक इन इंडिया के साथ जो है कोलैबोरेट में है? कौन सा है जी? ई गवर्नमेंट है, ई बिज़ है, ई मेक इन इंडिया है या ई इंडिया है? हाँ जी, ई बिज़ है जी, इसका राइट आंसर है ई बिज़। ई बिज़ is the single window online portal that has been integrated by the government of India for Make in India. So right answer is e-biz. Next चलते हैं, what is the main objective of Make in India? Make in India जो campaign है उसका main objective क्या है? हाँ जी, focus on the job creation and skill enhancement, focus on public sector banks, focus on development on educational constitution, फोकस ऑन पुअर फॉर देयर डेवलपमेंट। तो इसका मेक इन इंडिया का मेन फोकस क्या है? जी, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, फोकस ऑन द जॉब क्रिएशन एंड स्किल एनहांसमेंट। स्किल डेवलपमेंट है, स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? मेक इन इंडिया जो कंपेन है वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फोकस ऑन द जॉब क्रिएशन एंड स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम्स ऑल ओवर इंडिया। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, अंडर विच मिनिस्ट्री मेक इन इंडिया वॉज लॉन्च। कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसके अंडर मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था? हाँ जी, कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है? हाँ जी, कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यस, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस is that ministry under which the Make in India campaign was launched. Ministry of Finance is the right option. First option is the right answer. Next चलते हैं, Which creative agency was selected for the making the logo of Make in India? Make in India campaign का लोगो किस कंपनी ने या किस एजेंसी ने या किस क्रिएटिव एजेंसी ने डिज़ाइन किया था? हाँ जी, कौन सी है? इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन है, वाइडन प्लस कैनेडी इंडिया लिमिटेड। हाँ जी, वाइडन प्लस कैनेडी इंडिया लिमिटेड, जो थर्ड ऑप्शन है वाइडन प्लस कैनेडी इंडिया लिमिटेड, ये राइट ऑप्शन है। which it is the creative agency that was selected for the making of logo, that is of Make in India logo, right? So Wyden plus Kennedy India Limited. So जल्दी से वीडियो को अभी से अभी लाइक करें, लाइक का बटन दबाएं, अभी के अभी वीडियो को लाइक करें,
ठीक है जी। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जब अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थ्रू आउट इंडिया नीडी स्टूडेंट्स को, जिन जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। लॉकडाउन क्राइसिस चल रहा है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते, कई बार कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार हम ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस जो है वो नहीं ले पाते हैं, या हमारे पास कोई नोट्स या स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल नहीं होता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, उनके लिए चैनल एक वरदान है। ठीक है जी। कोई भी नोट स्टडी मटेरियल परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस को लेने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन के दौरान इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फुल फ्लेज कंप्लीट कोचिंग्स आपको यूजीसी नेट, सीटेट, पीटेट, एनवीएस, केवीएस की जो है 100% इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। ठीक है जी। आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है और कंप्लीट एजुकेशन ये कंप्लीट एजुकेशनल हब है। कंप्लीट एजुकेशन जो है वो इस चैनल से आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय फॉर नाउ।